Very good morning, dear student. This is unit 5th, which name is safety, and today we are studying section 1st of unit 5th, which name is teachers stand guards against monkey. That means those here some teachers are here, those are standing as a guard in front of the monkeys to save their students. यहाँ पे जो टीचर्स है वो गार्ड की तरह खड़े हैं मंकीज से उन बच्चों की रक्षा के लिए जो कि स्कूल में पढ़ने आते हैं. द मंकी मैनेस इज इंक्रीजिंग. मैनी पीपल हैव बीन इंजर्ड और हैव लॉस्ट देयर लाइव्स. देयरफॉर द टीचर्स स्टैंड गार्ड अगेंस्ट मंकी. Today we are talking about a village in which the menace is increasing day by day of the monkeys. मीन्स हम उस गांव की बात कर रहे हैं जहाँ पर बंदरों का खतरा दिन पर दिन बढ़ रहा है. बहुत सारे लोगों को उन्होंने घायल भी कर दिया है और कुछ लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है. देयरफॉर द टीचर्स स्टैंड गार्ड अगेंस्ट द मंकी. और इसीलिए जो टीचर्स है वो गार्ड की तरह वहाँ पर खड़े हैं मंकी से बच्चों को बचाने के लिए. चैन सिंह हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल. एक हेडमास्टर है जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं. चराई डिप्लॉयज टीचर्स ऑन गार्ड ड्यूटी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स. चराई में एक गवर्नमेंट स्कूल है और उसके हेडमास्टर हैं चैन सिंह, और उन्होंने कुछ टीचर्स को वहाँ पर मतलब एक एज अ गार्ड भी, जो वहाँ कुछ टीचर्स हैं उनको एज अ गार्ड भी अपॉइंट किया है. जब स्कूल का समय चलता रहता है, जब बच्चे पढ़ते रहते हैं, तब तक वो टीचर्स को गार्ड की तरह भी रखते हैं. टीचर्स ऑन गार्ड ड्यूटी मेंटेन अ विजिल नॉट ऑन द चिल्ड्रन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द monkeys who has spread the menace and who has become very violent. जो मंकीज़ हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंट हो चुके हैं और इसीलिए वहाँ पर टीचर्स को अपॉइंट किया गया है एज अ गार्ड, जो कि बच्चों की रक्षा कर सकें. और यहाँ हम टीचर्स की बात करें कि जो टीचर्स हैं वो वहाँ पर गार्ड की तरह खड़े हैं. बट टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम monkeys on the prowl in this belt of Udhampur district. This place is in Udhampur district, and here the teachers are looking here and there for saving the children from the attack of the monkeys. monkeys के अटैक से बचने के लिए उन्होंने क्या किया है, वहाँ पर वो पहरेदारी कर रहे हैं. monkeys entering classroom, taking away books from students and tearing this into pieces has become a routine affair in the school. Here it is said that the monkeys entered in the classes and they disturb the classes and they disturb to the students. They don't let them do not let them write, read or doing their studies. They disturb them and they tear the books of the children. ये जो मंकीज़ हैं इतने वायलेंट है कि वो क्लासेस में जाकर बच्चों को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं और उनकी जो बुक्स है उनको पीसेस में फाड़ देते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैव बीन लर्निंग अबाउट हाउ टू अटेंड क्लासेस अमिस्ट गैंग्स ऑफ मंकीज़. स्टूडेंट्स को ये भी सिखाया गया है कि जब इस तरह से मंकीज़ आकर अगर उनको परेशान करते हैं तो उस स्थिति में आपको कैसे पढ़ाई करनी है. And the task before the teachers is to ensure the safety of the children when classes is in the progress. And the task is given to the teachers for the safety of the students, that whenever any monkey entered in the classroom, it should not it should not hurt to any students. So this was the duty of the teachers for the safety of the students, कि क्लास के चलते समय बच्चों को जो मंकीज़ है वो परेशान न करे, और वो सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी थी, उन टीचर्स की थी. We have to utilize our maximum energy towards devising strategies to tackle this problem, said Chain Singh. Chain Singh is saying here that we should tackle this problem while teaching the students. That means that the teachers should not teach only the student, but they have to guard the students also. Most of the times monkeys enter classrooms and create a nuisance. Here it is said that as I told you that monkeys
were violent, and that's why they entered in the classes, they disturbed to the students, and they also create nuisance in the class. अगर कोई भी जानवर अगर हमारी क्लास में आ जाता है तो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, और इस तरह से वहाँ भी जब मंकीज़ आ जाते थे तो क्लासेस डिस्टर्ब हो जाती थी. We have to spare some teachers to guard the classroom while students attend class, he said, expressing helplessness to tackle this problem. Actually, the monkeys were a lot up in number. That's why Mr. Chen Sing was also disturbed by these monkeys. That's why he told the teachers to become guard in front. While teaching some teachers inside the classes, they have to stand outside and they have to see the scene, or दे हैव टू टेकल द प्रॉब्लम. मीन्स चेन सिंह जो है उन्होंने टीचर्स को बुलाकर कहा कि आप जब कुछ टीचर्स अंदर क्लासेस में पढ़ा रहे हो तो आपको कुछ टीचर्स को बाहर खड़े होकर उन बच्चों की देखभाल करनी है और पहरेदारी करनी है. He narrated that the class third student was severely injured when he was attacked by a monkey. Here Mr. Chen Sing told he informed an incident that a class third boy who was injured by the monkey, वो एक बच्चा था 3 साल का जिसको कि मंकी ने इंजर्ड कर दिया था. The student had just gone out of the classroom for a glass of water. और जो बच्चा था वो सिर्फ पानी पीने के लिए ही बाहर गया था, और इतनी देर में ही उस मंकी ने उस पर अटैक किया और उसको घायल कर दिया. The most difficult task before the school management is to protect students at the time of recess. और सबसे बड़ा टास्क ये था कि बच्चों को रिसेस के समय उन मंकीज से बचाना. When food is served to them under the midday meal scheme. As you all know, dear students, that monkeys were coming there for not for the nuisance but also in the hunger. मीन्स वो जो मंकीज थे वो भूखे भी थे और इसलिए वो वहाँ पर खाना खाने भी आते थे. तो जब मिड डे मील बच्चों को सर्व किया जाता था रिसेस के समय, लंच के समय, तब बच्चों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था. उस समय बच्चों को बहुत ही ज़्यादा उनकी केयर करना थी और बच्चों को उन मंकीज से बचाना भी था. The monkeys virtually invade the school when meal is served to the students studying below class 5th. When the food is served of class 5th students or below the class 5th student, at that time it was mandatory to save from the monkeys to the children. 6 teachers with lathis in hand are deployed around the hall to protect the students. और जिस वक्त पे बच्चों को मिड डे में सर्व किया जाता था उस वक्त 6 टीचर वहाँ पर क्लासेस के आसपास लाठी लेकर घूमते रहते थे और बच्चों की पहरेदारी करते थे ताकि वहाँ पर कोई मंकी ना आए और उन्हें परेशान न करे या इंजर्ड न करे. A year ago, monkeys were ruling only in 2 villages. But today they have expanded their empire to at least 6 villages. It is said that the monkeys were ruling as a king on 2 villages, but now they have expanded their empire and they are ruling on the 6 villages. पहले वो सिर्फ 2 गाँव पर ही अपना शासन चलाते थे, 2 गाँवों पर ही जाकर धावा बोलते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना जो राज्य है पूरा वो 6 गांव तक फैला लिया था. मतलब लगभग 6 गांव में जाकर वो लोगों को परेशान करते थे. In the meanwhile, a majority of the population of Charai village has already migrated to safer places. चराई विलेज के जो लोग हैं वो भी अपनी लाइफ को बचाने के लिए माइग्रेट करके मतलब कि कुछ दूसरे गांव में चले गए थे, कुछ सेफ प्लेसेस पे चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए. Inhabitants of Kagga, Mutal and Sundarni villages are facing similar problem. और दूसरे विलेजेस जो हैं वो भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे. वहाँ पर भी मंकीज जाते थे और अपना आतंक मचाते थे. The population of monkeys has increasing manifold in the past 2 years. In the last 2 years, the monkeys has spread their generations
and they have increased in number, and they have been taking control of one village after another, said the headmaster. Here headmaster says that they expand their kingdom, and they start ruling from one village to another village, and as soon as they started to panic in the people, दे गो टू अनदर विलेज, मतलब वो आतंक फैलाते थे हर गांव में जाके और लोगों के अंदर डर पैदा कर देते थे, और इस तरह से वो एक के बाद एक हर गांव को अपने कब्जे में ले रहे थे. Echoing similar views, octogenarian Chajju Ram Shastri viewed that despite a number of representations, the Wildlife Department has not taken any step to tackle the issues. यहाँ पे हम एक 80 साल की व्यक्ति, जो कि बहुत बूढ़ा है, 80 साल की व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो बता रहा है कि बहुत सारे प्रेजेंटेशन, बहुत सारी मीन्स कंप्लेंट्स की गई हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है. A high-level team of the department visited the village 5 years back, but nothing concrete has been done so far, he said. उन्होंने ये भी बताया कि 5 साल पहले भी यहाँ पर एक टीम आके जा चुकी है, जो कि हाई लेवल की टीम थी. एक डिपार्टमेंट था जो विलेज में घूमने आया था, और उनसे भी हमने इस प्रॉब्लम को शेयर किया, लेकिन कुछ भी नतीजा नहीं निकला. उन्होंने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं ली. शास्त्री अ रिटायर्ड टीचर, शास्त्री जो थे वो एक रिटायर्ड टीचर थे, हु हैज़ लेड एन एजिटेशन टू रीड द इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस मैनेज, जो कि इस तरीके से जो बंदे परेशान करते थे और जो पैनिक उन्होंने फैलाया था, जो इतना आतंक मचा रखा था, उससे छुटकारा पाना चाहते थे, और वहाँ के जो निवासी थे उनको भी उससे छुटकारा दिलाना चाहते थे. हैज़ लॉस्ट ऑल होप, लेकिन उनकी सारी जो होप है वो ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने सारे प्रयास करके देख लिए थे, फिर भी बंदरों से छुटकारा नहीं मिला था. अर्लियर मंकी मैनेस वॉज कन्फाइंड only to Charai and 2 other places, but now they have spread their terror in 6 villages. अब उन्होंने कहा कि जो बंदर हैं उन्होंने जो अपना मैनेज से, मतलब जो खतरा, वो कन्फाइन कर लिया था, और चराई विलेज में और बल्कि दूसरे 2 विलेजेस में भी उन्होंने अपना आतंक मचा रखा था, और उन्होंने अपना जो पूरा एरिया है वो 6 गांव में बांट लिया है. मतलब पहले उनका आतंक सिर्फ 2 गांव में था, लेकिन अब कितना फैला लिया उन्होंने, 6 गांव तक फैला लिया है. तो एक छोटी सी स्टोरी थी डियर स्टूडेंट, जिसमें ये बताया गया है कि मंकीज़ जो है वो गांव में परेशान भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा पैनिक करने वाले ही हों या फिर आतंक करने वाले ही हों. कभी कभी ये होता है कि कुछ लोग उनको इस तरह से परेशान कर देते हैं कि वो लोगों से चिढ़ने लगते हैं, उन्हें फिर इंसानों से नफरत सी होने लगती है, और इसलिए वो दूसरे लोगों की तरह ही हमको समझने लगते हैं और इसलिए परेशान करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी आप जाते होंगे रोड पर, स्ट्रीट डॉग भी कभी कभी आपके पास आते होंगे, या आप पर भौंकते होंगे, या आप पर लपकते होंगे. कभी कभी कुछ स्ट्रीट डॉग काट भी लेते हैं. बट ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भूखे होते हैं, उन्हें भूख लगती है, तो उन्हें खाने को नहीं मिलता, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं. बट अगर उन्हें पेट भर के भोजन मिलेगा तो वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे. और ऐसा ही गांव में भी था कि बंदरों को भी खाना नहीं मिलता होगा. जैसे कि आप जानते हो कि आजकल जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, जगह जगह पेड़ काट के, जंगल काट के वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो जो जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ आएंगे, और इसीलिए क्या करते हैं वो लोग जंगलों से निकलकर शहरों में आ जाते हैं या गाँव में आ जाते हैं. तो ये समस्या का समाधान भी होना चाहिए, और ये इस प्रॉब्लम को जो लोग फेस कर रहे थे उनको भी इस प्रॉब्लम को गहराई से समझना चाहिए. थैंक यू.